Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims. And the topic for this particular video is going to be the Quit India movement and the Wavell plan that had followed it. So let's begin. Now, students, let's have a quick recap of what we have studied till now, and then we'll see how we have come towards the Quit India movement. Now, students, in the last class, we had seen that in 1937, we have had our provincial elections. अब भाई provincial elections हुए, provincial elections में कांग्रेस ने participate किया. Now, when these provincial elections had happened, what was the result? The result was that in majority of the provinces, we see that INC was successful in forming government, either as a majority party or via the help of coalition. Even there were some Muslim majority areas, such as Assam and northwestern frontier provinces, in which our Indian National Congress was successful in creating the government. Now, this was something wherein they had a clash with Muslim League, wherein the Muslim League was trying to convince INC to form a coalition with them, especially in the Muslim majority areas, so that they both can create a coalition government. INC suggested that we have no issue collating with you. The problem is that you have to sign an undertaking wherein you are not going to rule through communal lines. Now, that is something that offended Muhammad Ali Jinnah, and because of that, the relations between Indian National Congress and Muslim League strained even further. Now, because of that, students, we see that the Muslim League did not start went to a different direction altogether, and we see that the relations are now not going to be better anytime soon. After that, students, we saw that in 1937 election, irrespective of this one communal disengagement that had happened altogether, one thing that we find is this Congress was successful in turning a lot of civil liberties that had been curtailed during the last movement, that is civil disobedience movement. Now, that was a great success, students, for us in terms of the provincial elections and Congress ministries being in power. However, we see that in 1939, what had happened? The Congress ministries resigned. Why did they resign? They resigned because there was beginning of Second World War. We had seen that in September 1939, Germany had attacked Poland, and after that, within a few days, Britain also began to join the war, and as a result we see that India was being forced कि भाई आप आएं और आप भी जो है हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करें वॉर में. हम देखते हैं इस टाइम पे जो हमारे वाइस रॉय रहे लिन लिथको, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया का ओपिनियन लिया ही नहीं और उसके बिना ही उन्होंने इंडिया को एक बेलिजरेंट स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिया कि भाई आप तो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ही करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब इस टाइम पर हम देखते हैं कि कांग्रेस ने बोला कि ठीक है भाई हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमारी दो कंडीशन है. वो दो कंडीशन ये है कि हमारे को वॉर के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और जब तक वॉर चल रहा है एक इमीडिएट बेसिस पर आप सेंट्रल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, यानी कि हमारे देश के लोगों की सरकार बनेगी. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स रखे कांग्रेस ने, इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि भाई ना तो हम कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में दोबारा, हमने रिजाइन तो कर ही दिया है, और इसके अलावा हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे. इस बीच में हम देखते हैं कि सरकार ने काफ़ी कोशिश करी कि वो हमारा सपोर्ट गैदर कर सके, इसलिए उन्होंने हमें कुछ ऑफर्स दिए. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स 1940 में हमारे पास क्या आता है, 1940 में हमारे पास ऑगस्ट ऑफर आता है, और उसके अलावा 1942 में हमारे पास क्या आ रहा है, 1942 में हमारे पास क्रिप्स मिशन आ रहा है. दोनों के दोनों में हम देखते हैं एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी इंडिया के डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, दैट आफ्टर द वॉर वी आर गोइंग टू गिव यू अ डोमिनियन स्टेटस. Now, the problem is that we do not want dominion status. In 1929, we had completely changed our goal in the first place. We now want what? We want complete independence, and this is something that was not reflected in the policies of Britishers. As a result, students, you will see that both the August offer and Cripps mission was something that were unanimously rejected by the leaders of Congress. Moreover, students, when we talk about the Cripps mission, the main problem is that the Cripps mission is upholding the idea of partition. The idea of partition, and this was something that was clearly very desirable for Muslim League. And here we feel that, okay, the government is siding with the Muslim League and they're trying to kind of break the unity of our country.
Now, that also became a bone of contention, especially between INC, Britishers, and Muslim League altogether, and hence both of these negotiations failed altogether. Now, one by one, when August Offer and Cripps mission failed specifically, at this point of time, we finally decided कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो तुम कुछ ही कर लो, पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं. मोर ओवर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए नाउ इट वॉज डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू हैव अ मास स्ट्रगल. इस बीच में अपन क्या कोशिश कर रहे थे, इस बीच में हम कह रहे थे कि भाई सरकार जो है उसको परेशान ना करा जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, इसलिए हम मास स्ट्रगल नहीं करेंगे. हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किए थे, जो कि विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए थे. लेकिन इस टाइम तक आते आते, खासकर क्रिप्स मिशन के आने के बाद में, जहां पर हम देखते हैं कि एक तो एक पार्टीशन टाइप की बात कर रहे हैं, मोर ओवर अभी भी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि नहीं, मास स्ट्रगल तो बहुत नेसेसरी है. और इसी वजह से स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 1942 के अंदर स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट. तो ये हमारे पिछले लेक्चर का छोटा सा बैकग्राउंड रहा, और यहाँ से हमें मदद मिल गई ये समझने में कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कैसे हो रहा है. इस कॉन्टेक्स्ट में नाउ लेट्स बिगिन विथ द क्विट इंडिया मूवमेंट. Students, if we talk about the Quit India movement, the decision to start this particular movement is something that was taken by the Congress Working Committee via a meeting that was held at Wardha on 14th July 1942. As a result, we decided that we are going to have a mass struggle, and it was named as the Quit India movement or Bharat Chodo Andolan. The reasons are quite evident, and we have already had a quick discussion. Number one reason for starting the Quit India movement was the failure of Cripps mission, which was not only talking about the dominion status, it was something that was upholding the idea of partition of India that would have had grave consequences for the unity of our country. Apart from that, students, due to the war, you will see that the economy of our country was again breaking down altogether. There was popular discontent amongst the masses, wherein the prices of day-to-day items were rising constantly, and apart from that, there was shortage of food in altogether. Apart from that, students, I had told you that there were two sides when it came to the Second World War. We have our allies, and then we have our Axis side. Axis is Germany, Italy, and then apart from that, we see who joined them later on, Japan. On the other hand, on the Allies side, we have USA, we have USSR, we have China, and then of course we have Britain. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब जापान ज्वाइन कर लेता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, तो वो बड़ी फेरोशियसली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक्सपेंशन करने लगता है, और घबराहट ये होने लगती है कि भाई ये साउथ ईस्ट एक्सपेंशन के तहत ये जापानीज ट्रूप्स इंडिया पर ना पहुंच जाए और इंडिया का पॉसिबल इन्वेजन ना हो जाए. इस वजह से हमारी जनता घबराई हुई है, और उनको पता भी है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो ब्रिटिशर्स तो बोरिया बिस्तर बांधेंगे और अपने घर भाग जाएंगे, उनको इंडियन से क्या लेना देना है. तो ये कुछ ऐसे कारण रहे जिन्होंने इंडिया की ऑल ओवर सिचुएशन को जेपरडाइज कर रखा है, और हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब तो हमारे को मूवमेंट करना ही पड़ेगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जब जापानीज अग्रेशन का थ्रेट आता है, तो हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली आप देखेंगे जापान कहाँ से एंटर कर सकता है इंडिया, असम, बंगाल और उड़ीसा के पार्ट से एंटर कर सकता है. और यहाँ पर ब्रिटेन जो है वो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एनिमी को ना हेल्प कर पाए, उसमें चाहे उन्हें कितनी भी ब्रूटैलिटी लगानी पड़े, वो तैयार थे उसको करने के लिए अगेंस्ट द जापानीज एडवांस. और यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा किनका नुकसान होता, इंडियंस का होता. एंड एज अ रिजल्ट हमने डिसाइड किया कि नहीं भाई, क्विट इंडिया तो चलाना ही पड़ेगा. मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जापानीज थ्रेट इतना ज़्यादा मेजर हो चुका था क्योंकि ऑलरेडी जापान वन बाय वन ब्रिटिशर्स और उनकी आर्मी को साउथ ईस्ट एशिया के अंदर डिफीट करे जा रहे थे. And this became one of the major reasons wherein the population of India was getting really scared, and they wanted to begin a movement wherein they wanted these Britishers to be chucked out of India so that we do not have to face the threat of Japan. Apart from that, students, you will see that even the prisoners of war or even the soldiers who had participated in the British Indian Army to fight against Japan in Southeast Asia, when they were taken as prisoners of war, or in case they are suffering any losses in Southeast Asia, they were not treating the Indian soldiers in a very decent manner. There was a lot of racism that was going on altogether, and all of these reasons combined were kind of pushing the masses and the leadership of our country कि
भाई अब तो तुम भारत को छोड़ ही दो। As a result, students, we took the resolution for Quit India movement on 8th August 1942, and this was ratified by the Congress at a place known as Gowalia Tank, which is located in Bombay. ये स्पेसिफिक लाइन जो है आपके पास सवाल बनकर आ चुकी है प्रीवियस ईयर्स में कि भाई क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन कौन सी जगह पर लिया गया था। तो इस तरह के पॉइंट्स अपने बाकी मूवमेंट्स में भी कवर किए हैं, उनके ऊपर आप जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी रेजोल्यूशन लिया गया तो मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि भाई क्विट इंडिया के तहत करना क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इस रेजोल्यूशन के तहत ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में उसको इमीडिएटली एंड किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये डिक्लेरेशन किया गया कि इंडिया अपने आप को हर तरह की फाशिस्ट और इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी से दूर रखेगी और अपने आप को उनसे डिफेंड करेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने एक डिसीजन ये लिया कि जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया से विड्रॉ करते हैं एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई जाएगी। फाइनली स्टूडेंट्स, क्विट इंडिया के अगर टूल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे हमने जो मेन टूल का डिसीजन लिया है वो होने वाला था एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल सो दैट दे कैन बी चक्ड आउट ऑफ अवर कंट्री एज इट हैज बीन लॉन्ग ऑल टुगेदर। Keeping that in mind, students, you will see that Mahatma Gandhi started instructing the different sections of the society so as to how they have to participate in the Quit India movement. Consequently, students, Gandhi advises the government servants that this time you need not need to resign from your positions. Instead, you have to simply declare allegiance to the Congress and consequently to the Quit India movement. सोल्जर्स को उन्होंने कहा कि इस बार आर्मी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने ही देश के लोगों पे गोली चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टूडेंट्स को बोला कि अगर आप कॉन्फिडेंट है तो पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए अभी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे पेजेंट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए महात्मा गांधी ने, वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर ज़मींदार एंटी गवर्नमेंट है तो म्यूचुअली डिसाइडेड जो रेंट है वो आप पे करिए, लेकिन अगर वो प्रो गवर्नमेंट है तो आप रेंट मत दीजिए। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स के जो हमारे रूलर्स हो गए, प्रिंसेस हो गए, उनको ये बोला गया कि मासेस को सपोर्ट करिए और अपने लोगों की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करिए। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स की जो लोग बैठे हैं, प्रिंसली स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है, उन्हें कहा गया कि अगर रूलर एंटी गवर्नमेंट है तो उसे सपोर्ट करिए और अगर वो एंटी गवर्नमेंट नहीं है तो अपने आप को लार्जर इंडियन नेशन का पार्ट मान लीजिए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए जिससे हम देखते हैं जोरों शोरों से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है एक वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होने लगा। हाउएवर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है उसने बड़ा ही क्विकली विद इन 1 to 2 days उन्होंने एक्ट कर दिया जिससे कि पहले ये मूवमेंट बढ़ पाता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है और उसके अलावा जो हमारी प्रोविंशियल कांग्रेस वर्किंग कमेटीज़ हैं इनको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया अंडर द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908. Moreover, students, all the major leadership was arrested within 2 days of the declaration of Quit India movement, and as a result, you will see this time the most unique thing about the Quit India movement is that most of the participation and most of the leadership and guidance is coming from the local people themselves. You will see majority of the leaders who are not yet arrested have to unfortunately do underground activity, otherwise even they will be arrested. And that is why this time the leading force, the driving force behind the Quit India movement was not the leadership of INC, rather it were the people of our country, and this is something that makes Quit India movement extremely unique. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पब्लिक जो है दे हैड स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ रैम्पेज, जिसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, दे आर अटैकिंग द सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर होइस्टिंग नेशनल फ्लैग्स ऑन द पब्लिक बिल्डिंग्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे लीडर्स जो कि अरेस्ट नहीं हुए थे उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको अंडरग्राउंड एक्टिविटी करनी पड़ रही है, यानी कि छुप कर काम करना पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास कौन लोग हैं जो कि छुप कर काम कर रहे हैं लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरशिप दे रहे हैं। दीज इंक्लूड द पीपल हु आर सोशलिस्ट्स, देन द मेंबर्स ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम ठीक से जब सुभाष चंद्र बोस का डिस्कशन करेंगे उसमें भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ, हमने देखा था कि 1939 के अंदर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है ही रिजाइंस फ्रॉम कांग्रेस
और क्यों रिजाइन कर देते हैं वो आईएनसी से? बिकॉज ही हैज आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स विद महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जब वो 1939 में कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं, उसके बाद वो आगे जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। तो ये जो एसोसिएशन है, दिस इज समथिंग दैट वाज स्टार्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड एक्टिविटी में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सोशलिस्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर्स कर रहे हैं, गांधी के आश्रम के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स कर रहे हैं, और उसके अलावा लोकल ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। अगर हम स्पेसिफिक पर्सनालिटीज की बात करें तो कुछ की पीपल जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अंडरग्राउंड एक्टिविटी को अंजाम दिया है, दीज इंक्लूड राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, उषा शर्मा, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, अमंगस्ट मेनी अदर मेंबर्स। इस पॉइंट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक बहुत ही खास चीज होती है क्विट इंडिया मूवमेंट के स्प्रेड के टाइम, दैट इज स्पेशली इन द रूरल एरियाज यू विल फाइंड दैट पैरेलल गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन। पैरेलल गवर्नमेंट माने हमने अपने देश की खुद की गवर्नमेंट बना ली है इंडिया के लोगों ने मिलके, और ये बड़ा ही यूनिक अचीवमेंट हमें क्विट इंडिया में देखने को मिलता है। ये जो पैरेलल गवर्नमेंट्स बन रही हैं स्टूडेंट्स, ये हमें 3 जगह पे स्पेसिफिकली देखने को मिलती है। फर्स्ट इज इन बलिया, जो कि 1 हफ्ते के लिए मात्र टिक पाई अंडर चित्तू पांडे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास मिदनापुर के अंदर एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है तमलुक, और यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट की शुरुआत करते हैं जतिया सरकार। इसके अलावा आप देखेंगे सतारा जो हमारे महाराष्ट्र के एरिया में पड़ता है, इन्होंने ये टर्म प्रति सरकार जो है इसको यूज किया था और यहाँ पर अपने लिए पैरेलल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करी थी। तो पैरेलल गवर्नमेंट को सतारा में प्रति सरकार कहा जा रहा था, और इसके तहत हम देखते हैं इन्होंने भी अपने लिए अलग से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर ली थी। ये तीनों जगह, ये 2 रूलर्स और प्रति सरकार टर्म कौन यूज कर रहा है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सीधे प्रीलिम्स क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई किस किस तबके के लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। मास पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि हमारे पास में जो यूथ है, स्पेशली हमारे पास बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया वुमेन का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और कुछ पॉपुलर लोगों के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो दिस इंक्लूड्स अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी एंड उषा मेहता। ऑल 3 ऑफ देम वर कैरिंग आउट अंडरग्राउंड एक्टिविटीज एज अ पार्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी वर्किंग क्लास है उधर से भी बहुत एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन आती है, जो कि स्ट्राइक्स पर जाते हैं और इनको बहुत रिप्रेशन भी फेस करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम पेजेंट्स की बात करें तो हर स्ट्रेटा के जो पेजेंट्स हैं वो आए थे और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। कुछ डिग्री तक हम देखते हैं कि जमींदार जो हैं वो भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए, स्पेशली जो लोअर लेवल्स पर हैं पुलिस के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उन्होंने जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करना शुरू किया, और इसकी वजह से गवर्नमेंट की लॉयल्टी इरोड हो रही थी, और ये हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा था। मुस्लिम्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट्स को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करी, उनको शेल्टर करने में हेल्प करी, और हमें कोई भी कम्युनल क्लैशेस नहीं देखने को मिलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो देखते हैं कि भाई हमारे पास जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो सीपीआई हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, इन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया टुवर्ड्स द क्विट इंडिया मूवमेंट। कम्युनिस्ट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट जो हैं इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि ठीक से क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट्स जो कि लेफ्ट ओरिएंटेशन के थे, उन्होंने एक बहुत ही शार्प राइट टर्न ले लिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, और इनकी जो पॉलिसी है उसको ऑल ओवर इंडिया में बहुत क्रिटिसाइज किया गया। बेसिकली कम्युनिस्ट जो कि टॉर्च बेरर्स थे अगेंस्ट एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी फाशिज्म, वो क्या करते हैं, जब जर्मनी पोलैंड को अटैक कर देता है तो उस टाइम पर ये जाके ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई हम जो है आपके साथ लड़ेंगे इन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ हियर ब्रिटिशर्स हु आर द टॉर्च बेयरर्स of imperialism who have started all this colonial struggle altogether, these people now being supported by communists is something that was not very well digested, especially by the other leaders of our country.
यहाँ पे आईएनसी जो है उन्होंने ये आरोप लगाया कम्युनिस्ट्स के ऊपर कि आप जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से गवर्नड है, आपको अपने देश से कोई लेना देना है ही नहीं। इर्रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट जो है उनकी पार्टिसिपेशन ठीक से नहीं आई क्विट इंडिया मूवमेंट में, और इसका मेन कारण ये रहा कि रशिया जो है उसके ऊपर जब नाजी जर्मनी ने अटैक कर दिया था, तो हम देखते हैं जहां पर एक तरफ पूरा देश लड़ रहा है अपने फ्रीडम के लिए, कम्युनिस्ट जो हैं वो ब्रिटेन जो है उसको वॉर के अगेंस्ट सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे मुस्लिम लीग जो है उन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था। उनका जो कारण रहा क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज करने का वो ये रहा कि उन्हें ये डर था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले गए तो हम लोग जो कि माइनॉरिटी हैं, हमें हिंदूज मिलके ऑप्रेस कर देंगे ऑल टुगेदर। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, इनका फियर भी कल्मिनेट करता है और ये 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व करते हैं, और इस दिन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस भी होती है। ये क्विट इंडिया के बाद होता है बाय द वे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस भी होती है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग बहुत एडमेंट हो चुकी है कि भाई पार्टीशन जो है उसको सब लोग एक्सेप्ट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जिन कारणों से मुस्लिम लीग डरी हुई है, लगभग उन्हीं कारणों से हिंदू महासभा भी डरी हुई है, और इन्होंने भी मूवमेंट को बॉयकॉट किया। ये इन्हें भी यही सेम फियर था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले गए तो हो सकता है मुस्लिम्स जो हैं वो पार्टीशन की डिमांड को और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से आगे लेकर जाएं और हमारा देश टूट जाए। As a result, Muslim League, Hindu Mahasabha, same fear, different outcomes, and both of them did not participate in the Quit India movement. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, प्रिंसली स्टेट्स की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी बाकी सारे मूवमेंट्स की तरह यहाँ भी एक लो की रिस्पॉन्स दिखाया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने से सॉर्ट ऑफ मना ही कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे गवर्नमेंट जो है वो वैसे भी बहुत क्विकली एक्टिव हो गई थी। विद इन 2 days ऑफ द बिगिनिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने रिप्रेशन शुरू कर दिया था। प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज जो हैं उनको बैन कर दिया था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को बैन कर दिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास में जो लोकल लोग बैठे हैं जो कि इस मूवमेंट के अंदर एक तरह से लीडर्स बन के आ रहे हैं, उनको भी सीवियरली रिप्रेस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इस टाइम पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मार्शल लॉ तो नहीं अप्लाई किया, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का रिप्रेशन बहुत सीवियर था। हम देखते हैं ज़्यादातर लीडर्स तो जेल में हैं, और इस वजह से हम देखते हैं कि वायलेंस जो है वो बहुत ही कॉमन हो गई थी, और ये वायलेंस ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी, ना कि मासेस की तरफ से आ रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे स्टॉर्म सेंटर्स जो है हमारे पास मूवमेंट के, वो है यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन एरियाज के अंदर मासेस जो हैं बहुत ही अपहीवल के मोड के अंदर थी, लड़े जा रही थी, वायलेंस हमारी तरफ से भी हो रही थी और सरकार भी रिप्रेस करने के लिए इक्वल वायलेंस कर रही थी। इस टाइम पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की बैकबोन हमारे आईएनसी के लीडर्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स, वर्कर्स और पेजेंट्स बनते हैं, जबकि हमारी जो अपर क्लासेस बैठी हैं जो कि हिंदू महासभा के सॉर्ट ऑफ सपोर्टर्स हो गए, और उसके अलावा हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो सरकार का सपोर्ट कर रही थी, उनको अपनी लॉयल्टी दर्शा रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि लोअर लेवल पे खास करके जो हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट्स बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल सरकार से कोऑर्डिनेट करना बंद कर दिया, और ये जो इरोजन हुआ गवर्नमेंट की लॉयल्टी की तरफ, ये हमारे को क्विट इंडिया मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट का हमारे देश के ऊपर और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सबसे पहली चीज़ हम एकदम क्लियरली इस्टेब्लिश कर चुके थे क्विट इंडिया मूवमेंट से, वो ये थी कि ब्रिटिशर्स अब इंडिया की विशेस के अगेंस्ट इंडिया को रूल नहीं कर सकते। मोर ओवर स्टूडेंट्स हम लोग डू और डाई वाले पोजीशन के अंदर आ चुके हैं, जो महात्मा गांधी का फेमस स्लोगन था। और यहाँ पर हम देखते हैं डू और डाई सिचुएशन के तहत एक चीज़ का हमने डिसीजन ले लिया था कि अब की बार जो है इंडिपेंडेंस लेके ही रहनी है, मास मूवमेंट के बाद सीधे इंडिपेंडेंस आनी चाहिए और नथिंग। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स इमीडिएट गोल हमारे देश का कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो चुका था, और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद कोई रिट्रीट नहीं था। देयर वाज नो ट्रूस दैट वाज इन द नियर फ्यूचर आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। कॉमन पीपल की जो रोल रहा, जो हीरोइक पार्टिसिपेशन रही, वो बहुत ही सराहनीय रही, जहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट्स भी बनाई और उसके अलावा थोड़ी बहुत मिलिटेंट अप्रोच भी अपनाई।
इसी वजह से कॉमन पीपल जो हैं इनके ऊपर जो रिप्रेशन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था, और रेजिस्टेंस इन्होंने फिर भी जारी रखी डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कंडीशंस वर वेरी एडवर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे ड्राइविंग फोर्स इस बार महात्मा गांधी या कोई और आईएनसी के लीडर्स नहीं है, इस बार जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारे कॉमन पीपल है, खास करके स्टूडेंट्स हो गए, पेजेंट्स हो गए और वर्कर्स हो गए। हाउएवर स्टूडेंट्स, एक मेजर प्रॉब्लम जो हमें क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास फेस करनी पड़ती है वो है एक मेजर फैमिन जो कि बंगाल में आएगा इन 1943। बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिशर्स जो हैं अपनी इंडियन कॉलोनी का जो फूड सप्लाई है उसको अपने लिए इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं विदाउट हैविंग एनी केयर और कंसर्न अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। हियर स्टूडेंट्स यू विल सी बिकॉज ऑफ द इनकन्वीनियंसेस ऑफ द वॉर, ये जो फेमिन है जो कि खास करके साउथ वेस्ट बंगाल के अंदर आया, इसने बहुत ही बुरा इम्पैक्ट छोड़ा और हम देखते हैं बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आके मर गए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मेजर कॉजेज इस फेमिन के ये थे कि हमारे पास में जो इतनी बड़ी आर्मी है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रही है, उनके खाने की व्यवस्था करने के लिए फूड को डाइवर्ट कर दिया गया। इनफैक्ट स्टूडेंट्स कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि जान करके ब्रिटिशर्स जो हैं, हमारे पास में इतना खाना था कि बंगाल के अंदर भी खाना दिया जा सकता था, फूड स्टफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था, इरिस्पेक्टिव इन्होंने इसको हॉग करके रखा कि फ्यूचर में हमारी आर्मी के काम आएगा। और इस वजह से इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज अ नेचुरल फैमिन ऑल टुगेदर, इट वाज समथिंग दैट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल टुगेदर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वॉर की वजह से बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया से जो चावल का इंपोर्ट था वो भी रुक गया था, जिसने एग्रावेट किया इस सिचुएशन को। और हम देखते हैं देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ऑल टुगेदर दैट वेरी एडवर्सली इफेक्टेड एटलीस्ट द पीपल ऑफ बंगाल। मोर ओवर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा था, और इस वजह से हम देखते हैं कि बड़ी सिटीज़ की तरफ खाना डाइवर्ट किया जा रहा है और रूरल पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर गई। और इस वजह से ये फैमिन ऑफ 1943 इज़ नॉट समथिंग that happened due to any natural consequences. It was something that was induced due to the repressive policies of the government. They knew what they were doing. They knew how the people in the rural areas are going to suffer irrespective. They proceeded further with it, and this was a very bad situation altogether. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स तो अरेस्टेड बैठे हैं। अब इस स्पीच में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कांग्रेस और लीग आपस में झगड़ रहे हैं। लीग का एजेंडा अलग है, उनको देश के इंडिपेंडेंस से कोई मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है कि हमें पाकिस्तान मिलेगा या नहीं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स इन दोनों ही पार्टीज के बीच में एक कंसिलिएशन मोड लाने के लिए, इन दोनों के बीच में भाई कोऑर्डिनेशन हो जाए, इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास एक वेटरन कांग्रेस लीडर हैं सी राजगोपालाचारी, जो कि कोशिश करते हैं कि भाई कांग्रेस और लीग में कोऑपरेशन हो जाए, और इसके तहत ये एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसको ये प्रेजेंट करते हैं 1944 में, जिसे हम कहते हैं सी राजगोपालाचारी प्लान। ये जो प्लान है स्टूडेंट्स, ये इसके जो पॉइंट्स थे, दीज इंक्लूड नंबर 1 कि कांग्रेस जो मुस्लिम लीग जो है वो अपने एजेंडा को एक बार साइड रखे, कंप्लीट डिमांड जो है हमारी इंडिपेंडेंस की उसको अधीर करे और कांग्रेस का साथ दे इस चीज़ के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं वो लीग को एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ में जो है इनका हाथ बटाएं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करें और सेंटर के ऊपर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के लिए कांग्रेस को कोऑपरेट करें। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला से आता है स्टूडेंट्स, वो ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की जो पूरी पॉपुलेशन है नॉर्थ वेस्ट के एरिया में और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, उनको बोलेंगे कि आपके बीच में एक प्लेबिसाइट होगा। ये जो प्लेबिसाइट होगा ये डिसाइड करेगा वेदर दे वांट टू बी पार्टीशनड और नॉट। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है ये बुरी तरह से फेल होने वाला है। The reason why it is not going to be successful is that number 1, Muslim League does not care about the complete independence of the country. The only concern that they have is you have to accept that we want Muslim nation, that is Pakistan, and we do not care about your independence altogether. तो जब तक आपकी पॉलिसीज के अंदर ये नहीं आएगा कि हाँ भाई पाकिस्तान बन जाएगा, हम आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे।
यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इनको क्या कहा, हमने इनको कहा कि भाई जब वॉर खत्म होता है तो इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में प्लेबिसाइड कराएंगे, लोगों से पूछते हैं कि क्या वो चाहते हैं कि पार्टीशन हो या ना हो। तो इस प्लेबिसाइड के तहत उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज कहते हैं कि हाँ भाई हम तो एक्सेप्ट करें पार्टीशन, हमें अपना अलग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अग्रीमेंट कर लिया जाएगा। लेकिन इरिस्पेक्टिव हमारे कॉमन सेंटर रहेगा, और वो कॉमन सेंटर जो होगा वो मेजर सब्जेक्ट्स जैसे कि डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन को एक ही यूनियन की तरह जो है एक्सेप्ट करके उनको गवर्न करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहे जिनके लिए यूनियन जो है हमारा, चाहे से हम दो अलग कंट्रीज बना ले ऑल टुगेदर, इसके बावजूद कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे जिसके अंदर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। और ये जो तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, ये है डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन। हाउएवर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट जो सी राजगोपालाचारी प्लान के अंदर था वो ये था कि हम ये प्लेबिसाइट और पार्टीशन तब एक्सेप्ट करेंगे जब इंग्लैंड एक बार के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद फुल पावर्स जो है वो इंडियन यूनियन के हाथ में दे देगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे लास्ट के 2 पॉइंट से तो आप देखेंगे जिन्ना और ज़्यादा ठोस हो गए कि बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आप लोग की इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने में। वी वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। आप तो हमें सिंपली ये बताओ कि पार्टीशन कैसे होगा और उसके अलावा पाकिस्तान कब बनेगा। So this was the point that Muslim League and Muhammad Ali Jinnah were resonating with, and this is not something that was a part of C. Rajagopalachari plan, and as a result, the plan failed altogether. मोर ओवर स्टूडेंट्स, जो थ्रेट मुस्लिम लीग फेस कर रही है वही सेम थ्रेट हम देखते हैं कि हमारे हिंदू फंडामेंटलिस्ट फेस कर रहे हैं। अगर जिन्ना और मुस्लिम लीग को कोई कंसेशंस दिए गए तो सीधा ऑपोजिशन आता है हिंदू महासभा से। इस जगह पर हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला सामने लेकर आए सी राजगोपालाचारी, इसको हिंदू लीडर्स जैसे कि वीर सावरकर जो हैं इन्होंने भी कंडेम किया कि हाउ डेयर यू डिवाइड द पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, हु आर यू टू सजेस्ट कि हमारे देश की टेरिटरीज को तोड़ा जाएगा। और इस वजह से ये जो प्लान है ये फेल हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दोबारा से एक बार कोशिश करी जाती है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कोऑपरेशन हो जाए। इस कोऑपरेशन के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास दो लीडर्स आते हैं, एक मुस्लिम और एक हिंदू। मुस्लिम लीडर हमारे पास कौन है? लियाकत अली खान। और उसके अलावा हिंदू लीडर है हमारे पास भूलाभाई देसाई। यहाँ पर हम देखते हैं एक कांग्रेस से है, एक मुस्लिम लीग से है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और उसके तहत एक प्रपोजल बनाते हैं जिससे कि सेंटर के ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा सके, जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन से बने ऑल टुगेदर। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो देसाई लियाकत पैक्ट बनता है इसके प्रोविजंस कुछ ऐसे होते हैं कि हमें जो इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है सेंटर में, उसमें से कांग्रेस और लीग के इक्वल नंबर ऑफ पीपल होंगे जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर नॉमिनेट किए जाएंगे। इसके अलावा ये पैक्ट कहता है कि 20% सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस पैक्ट के तहत भी जो है डिस्कशंस फ्रूटफुल नहीं हो पाते और कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता, एंड एज अ रिजल्ट बोथ आवर सीआर प्लान एंड देसाई लियाकत प्लान फेल्स मिजरेबली। As a result, finally, in the year 1945, the then Viceroy of our country, that is Lord Wavell, decides to start negotiations with the Indians for the transfer of power. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई सबसे पहली बात जो हमें ये देखनी है वो ये है कि वेवल को अब ऐसा क्या हुआ कि सडनली वो इंडिया के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्विट इंडिया 1942 में शुरू हो गया था, 3 साल हो चुके हैं, तो अब सरकार कैसे कंसिलिएटरी मोड में आ रही है। हम देखते हैं कि पहला मेजर कारण तो ये है कि इंग्लैंड के अंदर जनरल इलेक्शंस जो हैं वो मिड 1945 के अंदर पेंडिंग थे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया एज अ कॉलोनी का जो इशू है इसको दोनों ही राइवल पार्टीज अपना मुद्दा बना सकती थी और वो उनके विनिंग या लॉस का कारण बन सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास कंजर्वेटिव्स हैं वो सिंसियर दिखना चाहते थे ऑन रीचिंग अ सोल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक ऑफ इंडिया, एंड एज अ रिजल्ट द वेवल प्लान वाज फॉर्मुलेटेड, जिससे कि ब्रिटेन के अंदर जो हमारे इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर हम जीत पाएं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो यहाँ आते आते यूरोप के अंदर खत्म हो चुका था, लेकिन इंडिया के ऊपर जापानीज थ्रेट जो है वो अभी भी बना हुआ था।
और इस वजह से हम देखते हैं ब्रिटेन के जो अलाइज हैं वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि इंडिया का कोऑपरेशन हमें अभी भी वॉर के लिए चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कारण बने, दैट इज द पेंडिंग जनरल इलेक्शन इन इंग्लैंड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द जापानीज थ्रेट स्टिल लूमिंग ओवर इंडिया, बिकॉज ऑफ विच द वाइसरॉय लॉर्ड वीवल डिसाइडेड टू हैव सम नेगोशिएशंस विद द इंडियंस। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास में वेवल प्लान आता है जिसके की प्रपोजल्स यहाँ आपके सामने हैं। हम देखते हैं कि वेवल जो है वो शिमला के अंदर एक कॉन्फ्रेंस कन्वीन करते हैं जून 1945 में। इसके तहत ये कई प्रपोजल्स जो हैं इंडिया के लीडर्स के सामने ले डाउन करते हैं। पहली चीज जो यहाँ पर वेवल कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसको रिफॉर्म किया जाएगा। अब की बार जो रिफॉर्म आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बारिंग द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ जितनी भी पोजीशंस होंगी दीज विल बी गिवन टू द इंडियंस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम 2 मेंबर्स ऑल ऑफ द पीपल आर गोइंग टू बी इंडियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कहते हैं कि भाई हमारे पास में इन 2 मेंबर के अलावा जितनी सीट्स हैं उसमें 50-50 की रिप्रेजेंटेशन होगी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो बोलते हैं ये गवर्नर जनरल का जो रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल हमारे पास में होगा ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ फंक्शन करने वाला है इन अकॉर्डेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर हम देखते हैं जब रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल इंटरिम गवर्नमेंट की तरह पार्टिसिपेट करेगा तो ये सेंट्रल असेंबली को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इस कॉन्टेक्स्ट में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है इसका प्रोविजन दे रही है हमें वेवल प्लान। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ऑल दो गवर्नर जनरल के हाथ में वीटो पावर अभी भी है, लेकिन वो इस वीटो पावर को अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना या अननेसेसरली यूज नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में अगर हम इन प्रपोजल्स की बात करें तो इनके अंदर हम देख रहे हैं अभी भी हमारे पास में कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पॉइंट्स नहीं आए हैं, और आईएनसी और कांग्रेस दोनों अपने रिजर्वेशंस लेकर बैठे थे अबाउट दी वेवल प्लान। इन रिजर्वेशंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की बात करते हैं। मुस्लिम लीग क्या कह रही है कि भाई गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसके अंदर अगर 50%, वो 2 सीट तो हमने हटा दी, इसमें अगर 50% रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स की है लेट्स से, तो ये 50% रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स की नहीं बल्कि मुस्लिम लीग की होनी चाहिए। द रीजन बीइंग सारे मुस्लिम्स तो मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो कि मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं करते। उसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास में और भी लोग बैठे हैं जो कि मुसलमान तो हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो कांग्रेस के ही सपोर्टर्स नहीं है और दूसरी रीजनल पार्टीज के सपोर्टर्स हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है वो ये सोचती है कि यार हम तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, हमारे पास कितनी सीट रह जाएंगी। क्योंकि अगर मान लो आप पंजाब में हो तो पंजाब में आप देखेंगे कि हमारे पास यूनियनिस्ट पार्टी के जो लीडर है, हमारे पास यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर हैं खिज्र हयात खान। खिज्र हयात खान की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेवल कह रहे हैं कि भाई खिज्र हयात खान जो है इनको भी वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा जाएगा। नाउ ही इज अ मुस्लिम बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक सीट चली गई। तो यहाँ पर जिन्ना जो है उनको बहुत ज्यादा रिजर्वेशन आ जाता है, और वो ये कहते हैं कि भाई इंडियन मुस्लिम्स की सोल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग के हाथ में दो, जिससे कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारी रिप्रेजेंटेशन कम ना हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कांग्रेस जो है ये भी वेवल प्लान को रिजेक्ट कर देती है। ये वेवल प्लान को इसलिए रिजेक्ट करती है क्योंकि ये जो हिंदू और मुस्लिम का डिफरेंशिएशन किया गया है गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इसमें पब्लिकली ऐसा दर्शाया जा रहा है कि कांग्रेस लार्जली एक हिंदू पार्टी है ऑल टुगेदर, जबकि कांग्रेस ने शुरू से क्लेम किया है कि हम एक सेक्युलर पार्टी है और हम हर वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के भी रिजर्वेशंस है और उसके अलावा हमारे पास में कांग्रेस के भी रिजर्वेशंस हैं। मोर ओवर आप देखेंगे कि वेवल क्या करते हैं, वेवल एक बहुत जल्दबाजी करते हैं। विद इन अ फ्यू डेज ही डिक्लेयर्स कि भाई जो है नेगोशिएशन तो हो नहीं पा रही है, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्स, तो मैं तो जो है इनसे डिस्कशन नहीं करूंगा।
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने रिजर्वेशंस जताए हैं बहुत क्विकली। ऐसा नहीं कि वो उठ के चले गए या फिर वो ये कह रहे हैं कि हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पल्ला झाड़ते हैं वेवल, और इसलिए हिस्टोरियंस ये अंदाज लगाते हैं कि वेवल जो हैं अगर वो शांति से बैठ कर नेगोशिएशन कराते तो मे बी यहीं पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता। हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं दैट वेविल हिमसेल्फ वाज वेरी impatient altogether, and he took this really bad step when he did not decide to participate properly in the negotiations, and within a few days he suggested that the Wavell plan is a failed adventure altogether. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगर हमें क्विक रिकैप लें तो हमने ये डिस्कस किया कि कैसे 1939 के अंदर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देती है बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटिशर्स अपने वॉर एम्स डिक्लेयर करने के बजाय हमारे को कह रहे हैं कि आपको सिंपली जो है वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो भी कंडीशंस हमने ब्रिटिशर्स के सामने रखी कि भाई हम वॉर में इस कारण को अगर आप पूरा करेंगे तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, उनको उन्होंने वन बाय वन रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से स्टूडेंट्स हमारा जो देश है और हमारे देश की जो लीडरशिप है उन्होंने बोला नाउ इनफ इज इनफ। Although we are not going to disturb the process of the Second World War, we are not going to create a hindrance for them altogether, but this is the time where we are going to start demanding for complete independence. As a result, students हम starting में mass movement तो नहीं करते, लेकिन हम individual सत्याग्रह जो है वो शुरू कर देते हैं, जिससे कि सरकार को ये पता चल जाए कि हम चुप इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम चुप इसलिए बैठे हैं जिससे आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एफर्ट में तकलीफ ना आए। इसके बावजूद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि लिनलिथ को जो हमें अगस्त का ऑफर देते हैं और आगे अगस्त ऑफर देते हैं 1940 में, और उसके अलावा 1942 में जो हमारे पास क्रिप्स मिशन आता है वो दोनों के दोनों पहली बात तो डोमिनियन स्टेटस को रीइटरेट करते हैं, और डोमिनियन स्टेटस के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्रिप्स प्रपोजल तो कहीं ना कहीं पार्टीशन को भी एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि भाई हमारी देश की यूनिटी के ऊपर थ्रेट आ रहा है, और इस वजह से फाइनली 1940 के अंदर हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि नाउ दीज पीपल विल हैव टू क्विट इंडिया ऑल टुगेदर। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स गोवालियर टैंक बॉम्बे के अंदर हम रेजोल्यूशन लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, और ज़ोरों शोरों से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। हाउएवर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बड़ा ही ब्रूटली रिप्रेस करने लगती है इस मूवमेंट को, जहां पर हम देखते हैं कि हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रोविंसेस में ऑल इंडिया लेवल पे उनके मेन लीडर्स को विद इन 2 days अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो ड्राइविंग फोर्स क्विट इंडिया मूवमेंट की होती है, जो सबसे ही खूबसूरत है वो ये है कि स्टूडेंट्स, पेजेंट और वर्कर्स इसको मेन लीडरशिप दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जिनके अंदर हमारे पास बिजू पटनायक बैठे हैं, अरुण आसफ अली बैठी हैं, उषा मेहता बैठी हैं, सुचेता कृपलानी बैठी हैं। ये सब जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसको अंडरग्राउंड लीडरशिप दे रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे बहुत ही हैवी एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन रहा वाया द स्टूडेंट्स, देन वी हैव द वी हैव द वर्किंग क्लास, वी हैव द पेजेंट्स, देन वी हैव द लो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर ब्रेकिंग द यूनिटी ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़ोरों शोरों से चला, और इसके अराउंड स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं फ्रॉम 1940 ऑनवर्ड्स प्रॉपरली, जब हम देखते हैं कि भाई पाकिस्तान रेजोल्यूशन ले लिया गया है और उसके अलावा कॉल फॉर पाकिस्तान दे दिया गया था ऑल टुगेदर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी वजह से कम्युनल लाइन्स पर हिंदू मुस्लिम्स या फिर आईएनसी और मुस्लिम लीग बहुत डिवाइडेड है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अब तो पाकिस्तान हम लेकर ही रहेंगे, हमें तो पार्टीशन चाहिए। अब इस बीच में एक तरफ तो हमें ब्रिटिशर्स से लड़ना पड़ रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को कंसोल करना पड़ रहा है कि भाई पहले इंडिपेंडेंस तो मिले फिर देखते हैं पार्टीशन होगा या नहीं। लेकिन लीग के अंदर और कांग्रेस के अंदर बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है, और इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास एक वेटरन लीडर आगे आते हैं सी राजगोपालाचारी, जिससे कि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करा सके। हाउएवर स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। फिर हम आगे देखते हैं हमारे पास फिर से 2 लीडर्स आते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, जो कि देसाई लियाकत पैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं वहां पर भी जो है हमारी कॉन्वर्सेशंस फेल हो जाती हैं, और इस वजह से फाइनली 1945 के अंदर हमारे पास हमारे जो करंट वाइसरॉय हैं वेवल, वो अपना खुद का प्लान लेकर आते हैं।
इस प्लान का कारण ये नहीं है कि वो इंडियंस के बीच में नेगोशिएशन कराना चाह रहे हैं या उनको शांत करना चाह रहे हैं। मेन कारण ये है कि एक तो इंग्लैंड के अंदर इलेक्शंस पेंडिंग है, और दूसरी बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्दो यूरोप में खत्म हो गया है, लेकिन जापान का थ्रेट अभी भी इंडिया के ऊपर है। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वेवल प्लान आता है, लेकिन वेवल प्लान के अंदर गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उसमें हम देखते हैं उनसे मुस्लिम लीग भी खुश नहीं है, और उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस भी खुश नहीं है। मुस्लिम लीग मुस्लिम्स का सोल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते थे, जो कि वेवल भी अग्री नहीं कर रहे थे और कांग्रेस भी अग्री नहीं कर रही थी। और कांग्रेस को कुछ इस तरह से दर्शाया गया था कि ये सिर्फ एक हिंदू पार्टी है, अपर कास्ट हिंदू पार्टी है फॉर दैट मैटर, जिससे मुस्लिम लीग खुश नहीं थी। मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे आपस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस झगड़ तो रही है, लेकिन ओवरऑल नेगोशिएशन को ब्रेक डाउन करते हैं वेवल, जो बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं कि थोड़ी फर्दर नेगोशिएशन चल जाए, डिस्कशंस हो जाए तो हम किसी कॉमन ग्राउंड पे आ जाए। वो बहुत ही जल्दबाजी का डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बैठ रहा, एंड वेवल प्लान इज अ फेल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा क्विट इंडिया और वेवल प्लान का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.